Java is going to be a very important question. So whether you are looking for a backend developer or you are giving interview for front-end developer, like Java question will be asked for you every time. The reasons why, because Java is like object-oriented language. So you know that this principle is very is used in the industry a lot. Yeah. So let's start with it. I'll share some of the important questions that interviewer used to ask generally, which are I mean, you have to prepare all of these questions primarily. So basically, this is a language. This is very important and very, very beautiful and very informative language, you can say. Or there's so many things that you can learn about it. But there are few things, few topics that I would like to share with you. जो आपको करने ही करने, you have to do it at anyhow, because अगर आपने ये किया so you can assume like 70 to 80% of your interview is done for Java, right? So first of all, like obviously जब आप Java start करते हैं, Java पढ़ते हैं, so you have to start with OOPS principle. So there are four major OOPS principle, which is like abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, right? So you should study about each and every principle, what it is, how to explain it. And in most of the interviews what happens, interviewer आपसे पूछता है कि just like write a code, write a code to explain all of these features like OOP principles. So you have to write a code, you have to make class, and you have to show them that okay, that's how you are achieving abstraction, that's how you are achieving encapsulation, and that's how you are achieving inheritance in your code base, right? जैसे for example अगर आपको abstraction बताना है, so abstraction is like we can achieve abstraction using interface, right? So you have to make a interface and then you have to make a class. वो class जो class will extend that interface, and you can show that okay, that's how we are achieving interface, right? So first sorry, I forgot to ask, everybody is aware about Java? Basic things you have studied, or is it like a beginner for you? Please in chat. Yes, okay, you have studied Java more. I'm assuming that everybody know about Java. At least the basic level. Is that correct? Okay, that's fine. That's fine. So that would be good for me also, like to go ahead, because here I'm going to discuss like to correct Java interview. So I'm assuming all of you know at least few things and basic of the Java, right? So you can start with these things. These are like must ask interview questions, so you have to prepare with that. So OOPS principle I was talking about. Next thing is like practice a basic example that I was talking. So is like you have to assume an example, you have to just prepare with the example, so that interviewer आपसे पूछता है कि okay, just show me like how we implement these principles in code. So you should be ready with the code, right? Create classes and show them, right? So this is first thing. Second thing, static keyword, final keyword in Java, and it is very most asked. People play with these keywords, where we use static keywords, where we use final keywords, why we use final, why we use static, right? जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक क्लास, तो आपसे इट कैन बी आस्क कि भाई स्टैटिक क्लास के ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं क्या, इन विच मेमोरी स्टैटिक मेंबर्स गेट स्पेस व्हेन यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, static variable or static method, then where does this memory get allocated, which memory? There are different kind of memories, like heap memory we have, stack memory we have. So जब static keyword आप बनाते हैं, static object आप create करते हैं, then object की memory है वो कहाँ पे store होती है, where it is stored, right? Can we override static methods? आप static methods को override कर सकते हैं. So these are some questions जो आपको prepare करने हैं. मतलब मैं I'll help you here also, in detail, like what is the answer of it, but like you also have to prepare, because in this 1 hour lecture you'll get to know more about what to study and how to study. Maybe we can discuss it later, right? Third thing is like interface. So you must know about the difference between the interface and abstract classes. You must be aware about कि interface क्या होता है, abstract classes क्या होती हैं, but if I ask you what is the major difference between interface and abstract class, तो वो आपको you should know that. So मैं अभी शेयर करता हूँ, मतलब ये basically you won't be able to study it, you should experience it, what is the difference between it, interface and abstract class. So in interface what we just have method definition, declaration, we don't define method there, right? केवल एक मेथड वहाँ पे लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इंटरफेस बनाया, इंटरफेस ए, एंड वी जस्ट डिफाइन इनसाइड अ मेथड पब्लिक वॉइड
for example, function. This is a method in interface. And abstract classes, what is the difference between abstract classes? So in abstract classes, we have both type of methods. We can have both type of methods. Both we can define them and we can declare them. So it's like कुछ मेथड्स ऐसे होंगे abstract क्लासेस में जो जिनका डेफिनेशन होगा, और कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जो जस्ट लाइक हमने उनको इंटरफेसेस की तरह केवल वहाँ पे डिफाइन किया होगा, डिक्लेयर नहीं किया होगा, मतलब पूरा जो उसका मेथड बॉडी होती है वो नहीं होगी. बट वाई वी नीड इंटरफेस एंड वाई नीड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? तो यू शुड स्टडी इट, राइट. इसका एक रीजन ये हो सकता है कि आई मीन जावा में इफ यू नो अबाउट कि वी कैन हैव मल्टीपल inheritance, right? So it can be achieved only by interfaces. We can only extend one class, but we can't extend many class, right? So we can go with extending only one class, and we can implement, I mean, more than one interfaces. So I'll go with detail in everything, but like just like explaining like how interviewer can ask you, okay, what is the basic difference between interface and abstract class? So you should be ready with your answer. Next one is a constructor. So people ask what is constructor. So everybody know कि constructor क्या होता है. They ask what is parameterized constructor, and what is the difference between. So simple, a constructor with parameterized constructor. But also कभी I mean most of the students haven't heard about this keyword like parameterized, so they got confused. Basically these are the things that I used to ask in my interview. As a Java developer, 5 years of experience, I used to take many interviews, many fresher interviews. और मेरे जो कलीग्स हैं, आई ऑल्सो डिस्कस विद देम, सो दे आस्क मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ओनली. सो अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो आई एम गारंटी यू आर कंप्लीटिंग 70 to 80% ऑफ थिंग्स इन योर इंटरव्यू विच इज गोइंग टू आस्क यू, राइट. ऐसे ही पीपल यूज टू आस्क डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दैट आई डिस्कस की बाय व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. Next go is thread and processes. So it's very important. I mean, you should know about something from the operating system perspective, बट फ्रॉम द जावा पर्सपेक्टिव एज वेल. थ्रेड्स जो हैं, प्रोसेस जो हैं, क्या होती हैं. सो बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं. यू मस्ट हैव स्टडीड, अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी बैकग्राउंड से हैं, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है. तो थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए थ्रेड में और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है. इट इज लाइक कि थ्रेड इज लाइट वेट प्रोसेस, सिंपल. एंड प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस? आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, यू राइट अ प्रोग्राम, आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो बेसिकली वो एक प्रोसेस क्रिएट करता है. तो व्हाट इज प्रोसेस? सो जस्ट सिंपल वर्ड्स. आपको यू शुड बी क्लियर विद योर माइंड, यू शुड बी क्लियर विद योर आंसर. सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज प्रोसेस, जस्ट से प्रोसेस इज द running instance of a program. Yeah, whenever a program start, a process created. So what is the difference between thread and process? So thread is a lightweight process. So you can read and learn more about it in detail. So I'm just giving you basic example so that अगर आपको पता है तो आपको कैसे आंसर करना है. Multi-threaded environment. Multi-threaded environment क्या होता है? Where we use multi-threaded environment? So you can simply understand it like in a system where we need to run multiple threads at a time. So that is a multi-threaded environment. So you should also read about it more so that you can give some example, real-time example, right? Thread life cycle. Thread life cycle कैसे वर्क करती है आपने पढ़ा भी होगा. सबसे पहले थ्रेड क्रिएट होता है. थ्रेड क्रिएट होने के बाद देन थ्रेड गोज टू द first get created, then it's go to the runnable state, where then it may go to the blocked state, then it go to the completion state, terminated stage. So there are 5 stages of thread जो आप मतलब यूजुअली लोग पूछ लेते हैं in an interview, so you should be ready with that. और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हाउ थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड इन जावा. आपने आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोगों ने ये सब चीजें सुनी होंगी. आई एम जस्ट सेइंग इट कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव. सो थ्रेड हमने पढ़ा होता है, बट यू हैवंट ब्रश्ड अप बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू. तो आपको ये चीज देखनी है कि इफ इंटरव्यू कैन आस्क यू कि ओके हाउ वी कैन क्रिएट थ्रेड इन जावा. सो यू शुड बी रेडी विद द with your code कि okay we can create thread using interface which is runnable interface or thread class. So आपको वो पता होना चाहिए कि class A extends thread class like this we can create, और class A implements runnable, and then runnable का एक run method होता है जो void method होता है, उसको आपको define करना है. You have to define that method. So you should be ready with that in your mind. मतलब if some interview asks you, you just start writing code कि we can create like this things. That gives good impression कि हाँ इस that students know what is thread, how to create it, what is runnable interface. So यहाँ पे वो satisfy हो जाता है.
नेक्स्ट हमारा 5 कलेक्शन। कलेक्शन फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप whenever you I mean आप इंडस्ट्री में जब जाएंगे, when you go to इंडस्ट्री, वहाँ पे आप वर्क करेंगे, तो सबसे ज्यादा आप जो यूज करेंगे वो कलेक्शन का होने वाला है। सो व्हाट इज कलेक्शन? You can when people ask you what is collections, you can simply say the collection is like like utensils. I mean in a kitchen we have utensils, बर्तन रखते हैं, अलग अलग बर्तन होते हैं अपना अलग अलग सामान रखने के लिए, राइट? We have different utensils for curd, we have different utensils, we have plate, we have कटोरी जो होती है, right? We have bowl. So similarly like that you can understand collection is like we have data structures to store data. Simple. And what are these data structure? Array, linked list, list, map, hash map, set. So these are the collections. So you must read about the collections. And आपको उसमें पढ़ना क्या है? What you need to study? For example, array. People can ask you what's the difference between array and linked list. Where you will use array? आपको पता है कि array होता है. We can just make array. We can create array. We can store values in the array. Similarly, we have linked list. We can create linked list. We can add items in the linked list. We can remove. We can delete. Right? You must know what is the time complexity of insertions, deletion, and like accesses element in each of the collections. अगर आप एरे बना रहे हैं तो एरे में आपको अगर आपको इंसर्ट कराना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एरे से अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सिमिलरली अगर आप इन लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? आप डिलीट कर रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सो आकर जब आप ये पढ़ लेंगे, व्हेन यू विल स्टडी दिस, you can easily make the difference between the two collections, which is very important, right? Hash set, hash map, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपको मतलब कहाँ पे हमें यूज करना है? जैसे मैप होता है, मैप की वैल्यू पेयर होता है। मैप व्हाट यू कैन स्टोर वैल्यू, टू थिंग्स यू कैन स्टोर इन अ मैप एट अ टाइम। की वैल्यू, ए मतलब की एंड की रिलेटेड टू वैल्यू। फॉर एग्जांपल नेम उमंग, एज 26, like this you can store. So you must give some example to the interviewer. Okay, this is the scenario. इस सिनेरियो पे हम ये कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। सो यू मस्ट बी रेडी विद दैट, राइट? सिक्स थिंग इज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाट इज एक्सेप्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो टू टाइप ऑफ एक्सेप्शन आर देयर, रन टाइम एक्सेप्शंस, कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस, राइट? उनको अलग अलग नेम भी बोलते हैं, चेक्ड एक्सेप्शंस एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। जो कंपाइल टाइम होते हैं हम उनको बोलते हैं चेक एक्सेप्शंस, एंड जो रन टाइम एक्सेप्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस, राइट? तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ना है, राइट? एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग को आप कैसे करते हैं, मतलब कोड, जावा कोड में हम जब लिखते हैं तो हाउ वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडल करने का मतलब क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग? इट्स सिंपल। आपने कोई कोड लिखा, यू हैव रिटन अ कोड, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। वंस इट गेट एग्जीक्यूटेड, देयर माइट बी अ चांस कि उसमें कुछ इशू हो, दे कैन बिकम सम इशूज। इट माइट बी एनी इशू, इट माइट बी लाइक syntactical error, it might be like you are like using string in place of integer, anything, any logic difference, or it can be a runtime thing like you are addressing, you are getting wrong database. There can be so many other things, so many exceptions are there. So how you will handle if something wrong happen in your code? आपका कोड चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है और उसमें कुछ इशू आता है, how will you handle it? So to handle it we do exception handling. तो उसके लिए आपने वो सुना होगा कि काफी भी यूज ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। सो ट्राई कैच सबने सुना होता है, जो भी हमारा एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है वो ट्राई में रखते हैं, एंड उसके बाद हम एक कैच ब्लॉक लगाते हैं कि इफ एनी एक्सेप्शंस अराइज फ्रॉम द कोड जो ट्राई के अंदर है, देन वी हैंडल इट, वी कैच इट इन कैच ब्लॉक, राइट? सो कैच में हम लॉग करते हैं, प्रिंट करते हैं, एंड ऑल्सो आई मीन वी डू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई एरर आता है, जो हमने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम चाहते हैं उसको प्रिंट कर दें, तो आप कैच ब्लॉक के अंदर उसको प्रिंट कर सकते हैं, सो दैट व्हेन यू रन योर कोड यू विल गेट टू नो ओके इशू अराइज, बट व्हाट वाज द इशू, यू कैन गेट टू नो इन कैच ब्लॉक, राइट? सो ऐसे एक कीवर्ड एक और चीज होती है फाइनली। पहले हम ट्राई करते हैं, फिर कैच करते हैं, उसके बाद हम फाइनली करते हैं। तो मोस्ट ऑफ अस डोंट नो अबाउट फाइनली, फ्रेशर्स को भी काफी कम पता होता है, बट फाइनली इज ऑल्सो इंटरव्यू पूछ लेता है। So finally is used in the end. So finally block always run, मतलब आपने कोई कोड लिखा तो ट्राई रन होगा, ट्राई में अगर कुछ एरर आते हैं तो कैच ब्लॉक के अंदर आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट जाएगा, राइट? और अगर ट्राई में कोई एरर नहीं आता है तो कैच में नहीं जाएगा। दैट्स यू नो अबाउट ट्राई एंड कैच ब्लॉक, राइट? लेकिन अगर हम फाइनली की बात करें, वट एवर वी राइट इन फाइनली, ये
ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। आप अपने कोड में, आपने भी कोड लिखा, यू आर रनिंग अ प्रोग्राम, you want something ki wo which should always run, so you can write it in finally. So normally what we do, जब हम फाइल, we deal with files, आप कोई कोड लिख रहे हैं जो फाइल से डील करता है, फाइल्स लाइक रीडिंग फ्रॉम द फाइल एंड राइटिंग फ्रॉम द फाइल। तो अगर आपने किया होगा ये ऐसा कुछ कोड, सिनेरियो होता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि आपको एक कोड लिखना होता है कि यू रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सेल सीट है, you should read the data from that Excel sheet and you do some analysis, you should do some programming, and then after that जो भी result होगा, whatever the result, you should store that result in another file. So their file handle comes into the picture, right? So file handling अब उसको हम कैसे करते हैं, तो when we open the files we have to close the file. So वहाँ पे हम finally use करते हैं whatever resources we have, उनको हमें close, we can use फाइनली कीवर्ड। आई मीन मैं बस बहुत फास्ट जा रहा हूँ, आई नो, मैं बस आपको मतलब एक पहले ये चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस किस एंगल से पढ़ना है और कैसे कैसे इंटरव्यूज पूछे जा सकते हैं इन कीवर्ड से, राइट? आपको फाइनली पढ़ना है तो क्यों, मतलब उसमें क्या पढ़ना है, कैसे आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, राइट? फोर्थ इज, नेक्स्ट इज, सेवंथ इज हैशमैप इंटरनल मैपिंग। सो कलेक्शंस होता है, सो देयर इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन व्हिच इज हैशमैप। ऐसे ही हैशसेट भी होता है, एरे और लिंक लिस्ट भी होती है। तो आपको हैशमैप की इंटरनल वर्किंग पढ़नी है कि हैशमैप इंटरनली कैसे वर्क करता है। एक, इट इज कलेक्शन इटसेल्फ, इट इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। सो हाउ इट स्टोर वैल्यूज, ये वैल्यू कैसे स्टोर होती है हैशमैप के अंदर, वो आपको पढ़नी है, राइट? पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर, आपको पता होता है कि ओके देयर इज अ बकेट ऑफ एरे। जब आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट, वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट मे बी इन नेक्स्ट वेबिनार, ईच एंड एवरीथिंग। बट ये आपको टॉपिक है जो आपको पढ़ना है थोड़ा सा। पीपल यूज टू आस्क नाउअडेज, इनफैक्ट एक्सपीरियंस से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, हैशमैप इंटरनल वर्किंग। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग पूल। स्ट्रिंग आप लोगों ने सबने यूज की होगी जावा में। हम नॉर्मली कोई स्ट्रिंग बना देते हैं, जैसे यहाँ पे बनी हुई है स्ट्रिंग नेम 1 इक्वल टू अपलिफ्टर्स, राइट? स्ट्रिंग नेम 2 इक्वल टू अपलिफ्टर्स। सो वी यूज स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स की मेमोरी एलोकेट कैसे होती है? स्ट्रिंग पूल होता है, तो ये स्ट्रिंग पूल के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। स्ट्रिंग पूल इज नथिंग, स्ट्रिंग पूल इज लाइक सम एलोकेटेड स्पेस इन द मेमोरी। हमारे पास जो मेमोरी होती है, एक छोटा सा स्पेस हम स्ट्रिंग पूल के लिए, जो जावा होता है वो जेवीएम के अंदर ऑटोमेटिकली होती है। व्हेनेवर यू क्रिएट एनी स्ट्रिंग, तो वो जो स्पेस होता है वो वहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल है, नॉर्मली मतलब मैं पूछता हूँ और मैंने कई सारे इंटरव्यूअर को देखा, वही जरूर पूछते हैं। इट इज लाइक देयर इज अ वन string name 1 is equal to uplifters. So here name 1 is addressing to uplifters. Uplifters एक string है जो कि string pool में कहीं पे मेमोरी एलोकेट हो गई है और वहाँ पे इसकी मेमोरी वहाँ पे अवेलेबल है ये, राइट? string pool पे। और name 1 is variable which is used to address this uplifters. तो जहाँ भी मैं name 1 का यूज करूंगा, uplifters वैल्यू आ जाएगी, system.out.println and then name 1, देन वो uplifters वहाँ पे हो जाएगा, राइट? अब इसमें मतलब इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पुटअप इस तरह की से होते हैं कि आई मीन जैसे स्ट्रिंग 2 बनाया मैंने बनाया स्ट्रिंग नेम 2 अनदर वेरिएबल एंड आई एम अगेन एड्रेसिंग टू अपलिफ्टर्स। सो दे आस्क नेम 1 एंड नेम 2 आर सेम और नेम 1 एंड नेम 2 आर डिफरेंट, राइट? नेम 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेम 1 एंड नेम 2? सो ये इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इफ आई डू नेम 3 इक्वल टू नेम 2, right? So name 3 will be, and then I print system.out.println name 3. तो ये एक इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा रीड कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू। And next is read some features of Java 8. As you are freshers, you are studying in college, most of the people. So you must not go very deep in Java 8. So you just know only few features of Java 8. I mean, interview can ask you like, okay, do you know about Java 8? So you can just tell him, I don't know much about Java 8, but I know some features. So he can ask you, okay, what are the features? So some of the features, if you will search about it, you will learn about it. There are 4 or 5 major features that Java 8 provides, like filters, like abstract method, and like datetime API, right? So there are few things, completable feature, few things that you can just read it about it, and then maybe you can just tell to the interviewer. Yeah, sorry, I just going in and didn't ask you.
let me stop here. If you have any query in between, you can ask. Okay, let me continue then. So next is like read about Spring Boot. Spring Boot is framework which is like used to write Java code. Maybe you haven't heard about it. Matlab, when I was fresher, I didn't know about it. In college, we don't know about it. What is Spring Boot? But you maybe heard about it. So it would be good if you know about it and just learn few things like inversion control, why Spring Boot, auto wiring, container, and few annotations. It's like basic understanding of a framework, which is Spring Boot. If you are very comfortable with Java, for example, you have read up more about it and you are comfortable and you want to read more to make yourself ahead in the Java interview, to give good impression to the interviewer. So you can read more about Spring Boot. So there are few basic things that you can read like inversion control, why Spring Boot, what is the features that it provides, what is auto wiring, what is container in that, and few annotations. So it's like good to have, not must to have, but it's good to have. Let's go to the next slide. So it's like features of Java. I mean, yeah, it should be in the first thing, but like I keep it at 11 because it's like, I mean, people used to ask very often like this: Ki, what is the feature of Java? Why Java? What is the difference between Java and other languages available, like C++ and Java? Mein kya difference hai? So you can say like Java is a fast, Java is robust, Java is high performance. Then next question would be why it is fast, how it is fast. So you can just you maybe heard about the bytecode, how Java code work, how compilation work in Java. We first write a code in Java, हम Java में code लिखते हैं, then we compile it. When जब हम उसको compile करते हैं तो that code converts into bytecode, right? And that bytecode is the unique feature of Java compilation. Because ये bytecode जो होता है वो platform independent होता है. We can run this bytecode on any platform. We don't have to take care about platform. हम Java कहीं पे भी run कर सकते हैं. And Java has JVM has JIT compiler. You must know that word JIT compiler. और ये क्या करता है? So it basically convert bytecode into machine language. जो मतलब होता क्या है, आप ये लैंग्वेज लिखा, आपने कोई कोड लिखा, वो कोड किसी सिस्टम पे रन हो रहा है, राइट? तो सिस्टम पे बेसिकली आपने एक इंस्ट्रक्शन दी है, यू हैव गिवन इंस्ट्रक्शन कि ये काम करना है सिस्टम को. सिस्टम क्या, सिस्टम बोल रहा हूँ तो मैं सिस्टम बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो आपने जो जावा में लिखा तो बेसिकली यू हैव रिटन सम इंस्ट्रक्शन जो कुछ आपको करना है, वो करेगा कौन? करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम विल अंडरस्टैंड कि व्हाट टू डू. सो वी हैव टू राइट अ कोड इन अ लैंग्वेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आए, राइट? जावा में आपने लिख दिया, फॉर एग्जांपल जावा को आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने कोई चीज इंग्लिश में लिखी और ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में समझ में आता है, तो वो कैसे होगा? हमें ट्रांसलेशन करना पड़ेगा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, राइट? तो इन द सेम मैनर हम कोड राइट करते हैं जावा में इन जावा लैंग्वेज, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है मशीन लैंग्वेज में. तो हमें अपने जावा कोड को कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट कर सके, राइट? तो यहाँ पे JIT कंपाइलर आता है. जब भी हम जावा कोड लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, तो बाइट कोड बनता है. बाइट कोड की क्लास बनती है, बाइट जो भी आपने क्लास बनाई है, डॉट क्लास करके क्लास बन जाती है जब आप उसको कंपाइल करते हैं. तो JIT कंपाइलर क्या करता है, उस बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, तो ये फास्ट हो जाता है. अदर लैंग्वेज में ये फीचर नहीं होता कि JIT कंपाइलर मतलब इतना अच्छा नहीं है. जावा के अंदर JIT कंपाइलर काफी फास्ट होता है. दैट्स व्हाई जावा इज वेरी फास्ट लैंग्वेज, राइट? एंड इसके जो उप्स प्रिंसिपल होते हैं जावा के, इट मेक्स इट वेरी रोबस्ट, वेरी फास्ट, ओके. एंड रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं. सो यू कैन जस्ट रीड अबाउट the basic difference between Java and C++ and why Java is being used so much in the industry. तो ये इसका एक थोड़ा सा आप अपना फ्रेम, you can frame some answers, right, like this. And garbage collector, you must know about what is the garbage collector, how it works, right? Or and what are some algorithms. So basically in Java we create objects, right? Every time when we want to create some program, we create so many objects and we deal with objects. So ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई स्पेस इन द मेमोरी. जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बेसिकली ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्पेस लेता है. यू हैव लिमिटेड मेमोरी, राइट? तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद, तो फिर हमारी मेमोरी कंप्लीट यूज हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी. वी कांट रन मोर प्रोग्राम, राइट? सो वी हैव टू डिलीट दोज ऑब्जेक्ट्स विच वी हैव क्रिएटेड एंड नॉट आर इन यूज. जो ऑब्जेक्ट्स यूज में नहीं है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, हमें जरूरत नहीं है उन ऑब्जेक्ट्स की, सो वी कैन डिलीट and we can free our memory.
to free our memory, garbage collector comes into picture. तो garbage collector वर्क कैसे करता है, उसकी कुछ ये एक दो एल्गोरिथम आप पढ़ सकते हैं. मार्क एंड स्वीप एक एल्गोरिथम होती है जिसके थ्रू होता है. एक GIGC कंपाइलर है जो कि मोस्टली मतलब बेसिकली इट्स गुड टू हैव. अगर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं तो अच्छा. इंटरव्यूअर हार्डली पूछता है, बट पता होगा तो अच्छा होगा कि भाई GIGC क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है. तो ये कुछ मतलब 12 टॉपिक्स थे जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 60 to 70 या 80% तक इंटरव्यूअर यही पूछता है, या इनको या तो डीप में जाता है. अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू बहुत टफ होने वाला है तो वो इन्हीं सभी टॉपिक्स को डीप में पूछता है. तो इसके लिए आपको मतलब प्रिपेयर करना है. अभी कोई डाउट्स हैं तो हम वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं जिसकी फिर मतलब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स. अभी जो मैंने 12 पॉइंट डिस्कस किए हैं, देयर कैन बी मोर देन 100 क्वेश्चंस ओवर इट, बट आई हैव फ्यू विद मी जो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ, वी कैन टेक दिस. ओके, सो अभी अर्लियर वी डिस्कस लाइक व्हाट नीड टू स्टडी. अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब हम वी कैन डिस्कस इन डिटेल, मे बी I mean the part of the same thing that we discussed earlier. So what is Java? So you can just answer it like Java is high level programming language and it is platform independent. Java is a collection of object. Simple मतलब ये questions अगर कोई पूछे, so you can just say it like this. It's a high level programming language, object oriented language and platform independent. And what is the meaning of platform independent? वो हमने जो bytecode discuss किया है, आप वो पढ़ सकते हैं कि whenever we write any code in Java compiler convert it into bytecode. And that bytecode make it platform independent because bytecode can be run in any operating system, right? So you can simply answer it's a platform independent, it's object oriented language, and it's a collection of objects. Yeah. What are the features of Java? Yeah, I mean यहाँ पे we have written so many, but आप कुछ लोग कुछ features इसके याद कर सकते हैं, like core features of Java, like Java is OOPS concept. उसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं. You can write learn like this AP, abstraction, encapsulation, polymorphism, inheritance. These are like the very important thing in Java. Like object oriented. So like we discussed, everything is considered as object in Java. Whatever, कोई भी method, कोई भी variable जो भी हम यहाँ पे रखते हैं, we consider it as an object. Then next is a platform independent. That's हमने discuss किया कि same program works on different platform without any modification because of bytecode. We convert code. Java is compiler which is JIT compiler, और with the use of JIT compiler हम कोई भी code को convert करते हैं into bytecode, and that bytecode makes it platform independent because ये bytecode किसी भी operating system पर run हो सकता है. High performance. Why high performance? Is like JIT compiler. JIT compiler compile it very fast, right? और JIT compiler converts bytecode into machine language so that machine जल्दी से समझ पाए कि क्या एग्जीक्यूशन करना है. That's why it's a high performance and multi-threaded environment. जैसे हमने डिस्कस किया कि how we can create threads in Java using thread class and using runnable interface. So Java is a multi-threaded environment. So these are some features of Java which you can say if interviewer asks you. Yeah. Going to next. Yeah. What is meant by local variable and instance variable? तो मतलब ये this is also important question used to ask. Local variable क्या होते हैं, instance variable क्या होते हैं, static variables क्या होते हैं. So you must be very clear about it. So local variables are defined in the method itself. We make method in Java, right? So जो हम methods बनाते हैं Java के अंदर, उसमें जो भी हम declare करते हैं, जो भी variables declare करते हैं, we call it local variable, right? Similarly, instance variable क्या होते हैं, जो वेरिएबल हम क्लास में बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हमने कोई क्लास बनाई, क्लास अपलिफ्टर्स, उसके अंदर कई सारे हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, तो क्लास के अंदर बनाया. अब एक मेथड बनाते हैं स्ट्रिंग एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड स्टडी, और स्टडी मेथड के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंट ए, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम. तो जो मेथड्स, जो वेरिएबल्स जो हैं मेथड के अंदर बनते हैं, हम उनको लोकल वेरिएबल बोलते हैं. जो वेरिएबल्स क्लास में बनते हैं आउटसाइड ऑफ मेथड्स, हम उनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस है. और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो सबसे नॉर्मल पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल. सो बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल जो है यही होते हैं जो क्लास के अंदर बनते हैं, बट द मेजर डिफरेंस लाइक इंस्टेंस वेरिएबल ऑक्यूपाई स्पेस इन मेमोरी
ओनली आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने कोई क्लास बनाई, उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किए, मतलब वेरिएबल डिफाइन किए, सो आप उनको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। पर उनको स्पेस कब मिलता है, उनको स्पेस कब मिलता है, जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाया किसी भी क्लास में, तो जैसे आप स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं और प्रोग्राम बना देते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन मिल जाती है। सो आपने स्टैटिक कीवर्ड का यूज भी किया होगा कि आपने कोई स्टैटिक मेथड बनाया तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर लेते हो, कोई क्लास बनाई उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट किया तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हो स्टैटिक मेथड्स को। कोई आपने फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाई है क्लास ए, उसके अंदर एक मेथड डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, फंक्शन के अंदर कुछ आपने यू हैव रिटन सम कोड, तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्लास ए की, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो उस मेथड को ए डॉट फंक्शन। सो दिस इज बिकॉज कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि वो मेमोरी में चला जाता है, जो भी आप स्टैटिक का वेरिएबल बनाते हैं या मेथड बनाते हैं वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेती है। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल का जो डिफरेंस है, जब आप कोई वेरिएबल जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो तभी स्पेस मिलता है उसको मेमोरी में जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। या लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मतलब ये क्वेश्चन नॉर्मली वन वर्ड आंसर होते हैं, बट अगर आपको पता होता होगा तो ये अच्छा साउंड करता है। कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेता है कि हाउ, आई मीन प्रिंसिपल सबको पता होते हैं, सब पढ़ लेते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, राइट, एंड एनकैप्सुलेशन, लेकिन आप इनको अचीव कैसे करते हैं? सो हाउ एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव? सो इट इज यूजिंग इंटरफेस। सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग है कि यू आर सेइंग ओनली few things to the client. For example, we are using Zoom Meet here, right? हमने Zoom Meet पे there are so many buttons, so we just click it and something happening. We like we are sharing screen, there is a button for share screen, मैंने उसको क्लिक किया, स्क्रीन शेयर की, स्क्रीन शेयर हो गई, बट अल्टीमेटली बैकएंड पे कुछ कोड लिखा हुआ है इन्होंने, राइट? तो वो कोड क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता चल रहा है, we just know a button, इसको क्लिक करो ऐसे हो जाएगा. So that is actually abstraction. Abstraction is like just tell the person what will be happen, what is the name, what is the switch, anything, और backend में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, we don't tell them, we just explain what is it is. हम उसको ये नहीं बताते कि backend में क्या हो रहा है. Abstraction में just हम उनको एक आइडिया दे देते हैं कि ये मेथड है, इसको आप कॉल करो, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे लिखा हुआ है हम वो नहीं बताते हैं, राइट? सो दिस इज एक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन. तो उसको अचीव कैसे कर सकते हैं? तो उसको अचीव करने के लिए हम इंटरफेस का यूज करते हैं. हमने कोई इंटरफेस बनाया, फॉर एग्जांपल इंटरफेस ए बनाया हमने, उसके अंदर हमने 5 मेथड डिफाइन कर दिए, void run, void eat, राइट? हमने कोई इंटरफेस बनाया इंटरफेस एनिमल, राइट? उसके अंदर हम एनिमल के कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, मेथड डिफाइन कर रहे हैं. अब एनिमल क्या क्या करता है? एनिमल रन करता है तो हमने एक मेथड बनाया void run, ठीक है? एनिमल क्या करता है? ईट खाता है तो हमने एक मेथड बनाया एनिमल ईट, सॉरी void eat. हमने एनिमल और क्या करता है? एनिमल फाइट करता है, हमने एक मेथड बनाया void fight. So we just declare the method in the interface, right? अब वो एनिमल इंटरफेस को कई सारी क्लासेस हैं जो एक्सटेंड कर सकती हैं. अब एनिमल हमारे पास डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, लायन हो सकता है. सो ऑल ऑफ दीज कैन एक्सटेंड दैट इंटरफेस. फॉर एग्जांपल हम एक क्लास बना रहे हैं, क्लास कैट, कैट इंप्लीमेंट करती है इंटरफेस को, राइट? अब इंटरफेस का अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को एक्सटेंड करती है, सो वी ऑल नो कि इंटरफेस के जितने भी मेथड्स होते हैं उनको डिफाइन करना पड़ता है. तो उसके अंदर जो हमने 3 मेथड बनाए थे इंटरफेस के अंदर, वो हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे. कैट कैसे फाइट करती है हम वहाँ पे डिफाइन कर देंगे मेथड को. कैट कैसे ईट करती है हम वहाँ पे डिफाइन कर देंगे मेथड को. कैट कैसे रन करती है वो वहाँ पे डिफाइन कर देंगे. सिमिलरली हम जब लायन क्लास बनाएंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे इंटरफेस एनिमल, ठीक है? तो एलिमेंट जो लायन है वो डिफरेंट तरीके से ईट करता है, तो हम डिफरेंट वहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं. लाइन जो है डिफरेंट वे में रन करता है तो वहाँ पे हम डिफरेंट डेफिनेशन दे सकते हैं. सो बेसिकली अगर हम इंटरफेस देखें एनिमल, ठीक है, तो एनिमल से तो हमें ये नहीं पता चल रहा है ना कि एनिमल में से तो हमें ये पता चल रहा है कि एनिमल के अंदर 3 मेथड है, एनिमल ईट, रन एंड फाइट, बट वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन है वो हम नहीं बता रहे हैं. सो दैट्स हाउ वी अचीव एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग इंटरफेस, राइट? तो ये बेसिक मतलब वन वर्ड दे सकते हो, बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया. थोड़ी सी आप जब थोड़ा डीप थोड़ा सोचेंगे तो यू गेट इट क्लियर पिक्चर कि अच्छा ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन से हमने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया एक तरीके से. हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता रहे हैं, केवल मेथड का नहीं बता रहे हैं. नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी. हाउ वी अचीव रीयूजेबिलिटी इन जावा यूजिंग इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस में हम करते क्या है? इनहेरिटेंस में भी हम वही एक्सटेंड्स करते हैं क्लास को,
राइट। एक क्लास ए होती है, सुपर क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करती है सुपर क्लास को, राइट। सो जब हम उसको सुपर क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो सुपर क्लास का कोड भी चाइल्ड क्लास में आ जाता है। सो दैट्स हाउ वी अचीव रीयूजेबिलिटी इन जावा, राइट। सो इट्स वन वर्ड आंसर। इस पे क्रॉस क्वेश्चंस भी यू विल ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, राइट। व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो आई मीन थोड़ा बेसिक डिटेल में go next. Yeah. What is inheritance? So inheritance means the class can extend to another class, right? So that code can be used from one class to another class. The existing class is known as superclass, whereas the derived class is known as subclass. So यहाँ पे हमने क्लास बनाई है सुपर क्लास, पब्लिक क्लास, अपलिफ्टर्स। तो ये सुपर क्लास है। उसके बाद हमने एक दूसरी क्लास बनाएंगे सब क्लास, पब्लिक क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड अपलिफ्टर। तो ये जो स्टूडेंट क्लास है इसको हम सब क्लास भी बोलते हैं, इसको हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, राइट। अब जस्ट एज्यूम कि हमने एक क्लास बनाई अपलिफ्टर्स। सो इनसाइड अपलिफ्टर्स हम वी कैन मेक सो मेनी मेथड्स, वी कैन मेक सो मेनी वेरिएबल्स। ओके, नाउ हमने एक अलग क्लास बनाई स्टूडेंट्स एक्सटेंड अपलिफ्टर्स, एंड हम स्टूडेंट्स के अंदर भी कई सारी क्लासेस, कई सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं, कई सारे मेथड्स बना सकते हैं, राइट। लेकिन जब हम एक्सटेंड कर लेते हैं अपलिफ्टर्स को, तो जो अपलिफ्टर्स के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे या जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो कोड भी एक्चुअली स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ जाता है। हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, अपलिफ्टर्स के अंदर का जो कोड है वो भी स्टूडेंट्स के अंदर आ जाता है। तो अगर हमें कोई मेथड एक्सेस करना है जो अपलिफ्टर्स के अंदर लिखा हुआ है तो हम सुपर कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। आप सबने सुपर कीवर्ड सुना होगा, हाउ वी कैन यूज सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट है, मैंने मिस कर दिया, वो भी आप पढ़ सकते हैं, पूछ लेते हैं इंटरव्यू कि सुपर कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है। तो इनहेरिटेंस में जब भी आप किसी क्लास को एक्सटेंड करते हो सुपर क्लास को, तो सुपर क्लास के मेथड्स को अगर आपको यूज करना है, सुपर क्लास के मेथड्स वेरिएबल्स को आपको यूज करना है, तो यू कैन यूज सुपर कीवर्ड देयर, राइट। सो इनहेरिटेंस इज ओनली एप्लीकेबल टू पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर, राइट। सो यहाँ अपलिफ्टर्स के अंदर के जो भी वेरिएबल्स पब्लिक होंगे, जो भी प्रोटेक्टेड होंगे, केवल वही इनहेरिटेंस होगा। प्राइवेट मेथड को हम एक्सेस नहीं कर सकते इनहेरिटेंस में। प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, राइट। Members means private variables, private methods, private classes can't be inherited. Just to understand, when you inherit a class, you are kind of adding super class code in your child derived सब क्लास। जो मैंने बोला, इस क्लास को हम सुपर क्लास, सॉरी, चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, सब क्लास भी बोलते हैं, ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं। तो जब भी हम इनहेरिट करते हैं तो हम बेसिकली जो सुपर क्लास का कोड होता है उसको ऐड कर रहे होते हैं अपनी चाइल्ड क्लास में, राइट। और केवल वही कोड ऐड होता है जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड होता है। जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं या प्राइवेट मेथड्स होते हैं, हम उनको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा, कैन जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस? यस, मतलब जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर सकता है, यस, बाय इंटरफेसेस। मतलब वी कैन ओनली एक्सटेंड वन क्लास बट वी कैन इंप्लीमेंट मैनी इंटरफेस एट द सेम टाइम। क्लास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास है स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स अपलिफ्टर, एक क्लास इसने एक्सटेंड कर ली। अब ये कोई और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, बट यहाँ पे वो इंप्लीमेंट कर सकता है इंटरफेस। वो इसके बाद लिख सकता है इंप्लीमेंट इंटरफेस ए, कॉमा इंटरफेस 2, कॉमा इंटरफेस 3। तो कई सारे इंटरफेस को एक साथ इंप्लीमेंट कर सकता है और एक क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। सो हम इसका आंसर बोल सकते हैं, ये इनहेरिटेंस होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम कर सकते हैं। नोट, जावा सपोर्ट्स ओनली वन क्लास टू एक्सटेंड एंड मल्टीपल इंटरफेसेस। तो आप इसको आंसर ऐसे कर सकते हैं, या। सो व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? आपको भी याद रखना है कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन मेडिसिन कैप्सूल, राइट। सो सिमिलरली इन कैप्सूल में होता क्या है, वी डोंट नो व्हाट इज इनसाइड कैप्सूल, राइट। तो हमने एक जो भी हमारी मेडिसिन होती है, वी कवर्ड इट विद कैप्सूल। तो एनकैप्सुलेशन में बेसिकली डेटा हाइडिंग होती है। आपको कोई यू आर मेकिंग सम वेरिएबल्स, यू आर मेकिंग सम मेथड्स, एंड आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट द कोड फ्रॉम अदर्स। सो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट इट? यू कैन प्रोटेक्ट इट यूजिंग एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव होता है? इंटरव्यूअर कैन आस्क यू कि हाउ एनकैप्सुलेशन इज अचीव्ड। सिंपल वन वर्ड आंसर, वी कैन अचीव इट यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। We can achieve in using access modifier. What is access modifier? Next question होगा, what is access modifier? Access modifier are public, private, default, protected. These are like access modifier. तो आप इनका यूज करके एनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें इस कोड में, पब्लिक क्लास एडिशन स्ट्रिंग नेम अपलिफ्टर्स, राइट। तो अब इसको अगर अब नेम वेरिएबल है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस क्लास का नेम वेरिएबल जो है डायरेक्ट कोई यूज ना कर पाए, अभी ये क्लास है, मैंने बनाई है एडिशन, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नेम, मेरे को उसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एडिशन क्लास का। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एडिशन, obj इज इक्वल टू न्यू एडिशन।
ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं obj डॉट नेम करके एक्सेस कर सकता हूँ इसको, बट नाउ आई वांट कि भाई कोई भी मेरा वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक माय वेरिएबल प्राइवेट। मैं अपने वेरिएबल को प्राइवेट बना दूंगा और उसके फिर गेटर एंड सेटर बना दूंगा उसको एक्सेस करने के लिए। प्राइवेट करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट से उसको यूज ही नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए क्या किया, मैं पब्लिक मेथड बना दूंगा, पब्लिक गेटर एंड सेटर। अगर आपने गेटर सेटर मेथड पढ़े होंगे, सो यू कैन जस्ट आई मीन लुक द कोड की गेटर सेटर का कोड कैसे होता है। सिंपल होता है, गेटर एक मेथड बना देता है, दिया जाता है void गेटर, है ना, कोई फंक्शन बना दिया void गेटर, और जब उसको गेट करते हो पब्लिक void गेटर, तो जस्ट वो आपको नेम दे देता है। तो गेटर सेटर मेथड बना देते हैं हम और अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देते हैं ताकि कोई भी डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। तो एक सिंगल वर्ड क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि हाउ वी अचीव एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन इज अचीव बाय एक्सेस मॉडिफायर। व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर? एक्सेस मॉडिफायर आर प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड कीवर्ड, राइट। और सिंपल वर्ड में एनकैप्सुलेशन होता क्या है? व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? इट्स लाइक डेटा हाइडिंग, यू कैन से डेटा हाइडिंग और प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अदर्स। कभी कभी स्ट्रगल कर जाते हैं हम इसको एक्सप्लेन करने में, तो ये 2-3 वर्ड आप यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अदर्स और डेटा हाइडिंग। हाउ इट इज अचीव्ड? यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड, राइट। ठीक है, फाइनल कीवर्ड डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो फाइनल कीवर्ड इट लाइक, जैसे इसका नाम बोल रहा है ना, फाइनल, फाइनल इट मींस फाइनल, फुल एंड फाइनल, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल फाइन, आप अपनी क्लास बनाई, यू आर मेकिंग अ क्लास A, right, and you are defining a method A, variable here, int A, static नहीं, final int A is equal to 5. So basically final says कि you can change the value of it. अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं फाइनल इंट ए, सो इट मीन्स यू कैन चेंज इट्स वैल्यू। आपने कोई क्लास बनाई, क्लास बी, और क्लास बी में आपने एक्सटेंड कर लिया इसको क्लास ए को। अभी इस क्लास के अंदर आप बी क्लास के अंदर यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इंटीजर ए इवन इन द कोड इटसेल्फ। जब आप क्लास ए के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया फाइनल इंट ए, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं कोड के अंदर। जैसे कि अगर यही क्लास में बात करूं, क्लास ए, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए इक्वल टू 5, और मैंने एक मेथड एक और वेरिएबल बनाया फाइनल इंट बी इक्वल टू 10। नाउ किसी आई कैन चेंज वैल्यू, मतलब मैं कोई मेथड लिख रहा हूँ void print, मैं इस मेथड के अंदर आई कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 कर सकता हूँ, ठीक है। बट बी की वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता, आई कैन चेंज द वैल्यू ऑफ बी। तो फाइनल मींस इट्स फाइनल, वंस यू मेक अ वेरिएबल फाइनल, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इट विल रिमेन सेम। अगर आप मेथड की बात करें, इफ यू मेक एनी मेथड फाइनल, इट मींस यू कांट ओवरराइड इट। जैसे हम पॉलीमॉर्फिज्म में अभी पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म में 2 चीजें होती हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, राइट। तो अगर आप किसी मेथड को फाइनल करते हैं, इट मींस यू कांट ओवरराइड इट। ओवरराइड मतलब हम पढ़ेंगे क्या होता है। ओवरराइड बेसिकली हम एक मेथड को ओवरराइड करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, एक नाम के साथ उस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई मेथड अगर फाइनल है, सो फाइनल मेथड का मतलब हो गया, अगर हम किसी मेथड को फाइनल बनाते हैं, so it means we can't override it, we can't override it। और override क्या होता है वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज दो डिफरेंस हो गया। अगर वेरिएबल फाइनल है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मेथड फाइनल है तो वो ओवरराइड नहीं होगा, राइट। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, एक बार थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। या निकिता, आई मीन विल कम टू दिस, आई मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनलाइज, फाइनली, बट लाइक अभी एक बार थोड़ा पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं, राइट। तो काफी पूछा जाता है वैसे, ये जो आपने पूछा ना, इट्स वेरी, मैंने फाइनल फाइनली बताया था, तो फाइनलाइज भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड होता है जो मतलब पूछा जाता है कि कैसे आप यूज कर सकते हैं इसको। तो एक बार पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज लाइक many forms. Polymorphism means many form. Poly itself, well, poly means many, or so polymorphism means many forms. It's like एक बाम तीन काम. You can understand like this. For example, man. एक मैन हस्बैंड भी हो सकता है, एक मैन फादर भी हो सकता है, एक मैन एम्प्लॉय भी हो सकता है, बट ही प्लेज डिफरेंट रोल एट डिफरेंट टाइम। जब वो हस्बैंड होता है तो हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा होता है, जब फादर होता है तो फादर का रोल प्ले कर रहा होता है, जब वो एम्प्लॉय ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे वो एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहा होता है। तो इट्स लाइक पर्सन सेम है, ओनली वन पर्सन मैन,
but he is playing three different roles. So this is the polymorphism. Polymorphism is like with the name, with a name of method, we can have different functionality, right? आदमी तो सेम है, person is same, but he is doing different thing at different time. तो similarly, the polymorphism means एक हम तीन काम, one name, many functionality. So a single object can refer to the superclass or subclass depending upon the reference. So basically मतलब ये वो टेक्निकल चीज होगी, बट ये फॉर एग्जांपल हमने एक मेथड बनाया क्लास ए के अंदर, क्लास सुपर क्लास बोलता हूँ, सुपर क्लास हमने एक मेथड डिफाइन किया और रन मेथड डिफाइन किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, पब्लिक वॉइड रन, और उस रन के अंदर हमने कुछ भी फंक्शनैलिटी लिखी, डिफरेंट फंक्शनैलिटी, ठीक है। नाउ मैं एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, क्लास चाइल्ड, राइट, एक्सटेंड्स सुपर क्लास, और मैं उसके अंदर फिर से वो सेम मेथड यूज करता हूँ जो मैंने रन मेथड बनाया, उसी सेम मेथड को यूज करता हूँ, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली हमने दो मतलब सेम नेम के मेथड बनाए, एक चाइल्ड क्लास में एक सुपर क्लास में, बट दोनों की फंक्शनैलिटी अलग कर दी। सो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट पॉलीमॉर्फिज्म अगर कोई पूछे तो इट्स लाइक आई मीन मैनी फॉर्म्स यू कैन से, मतलब we can have many forms one thing. So how polymorphism is achieved, it's used to ask, so you should have one word answer, method overriding and method overloading. ठीक है, तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक ये मिस हो गया मेरे स्टार्टिंग में, बट आपको ये भी जरूर पढ़ना है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आपको अभी तक आई मीन इवन आफ्टर 5 years भी ये सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बिल्डर में और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है, राइट। सो स्ट्रिंग यू विल नो कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग बेसिकली हम एक टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग का यूज करते हैं। सो स्ट्रिंग वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं, स्ट्रिंग पूल मेमोरी, जैसे हमने डिस्कस किया था, स्ट्रिंग पूल मेमोरी होती है, हीप मेमोरी होती है, बेसिकली एक पर्टिकुलर, जैसे हमारी मेमोरी है, वी हैव अ मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत बड़ी मेमोरी है, तो एक स्ट्रिंग पूल करके एक छोटा सा मेमोरी एलोकेट होता है जेवीएम के अंदर। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो स्ट्रिंग पूल के अंदर ऑक्यूपाई हो जाती है, उसकी जो स्पेस होती है। तो जैसे कि स्ट्रिंग पूल आर स्टोर्ड इन कांस्टेंट स्ट्रिंग पूल, राइट। सो अब स्ट्रिंग बिल्डर भी होता है, स्ट्रिंग बफर भी होता है। तो स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है, जो स्ट्रिंग बफर होता है, वो जो है उस स्ट्रिंग पूल में नहीं होते, उनकी मेमोरी अलग होती है, उनकी हैश मेमोरी में, वो डिफरेंट मेमोरी में लोकेट होते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है जो लोग पूछते हैं, तो सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग जो है आपकी इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग नेम इक्वल टू बुक, राइट। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ बेसिकली, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बुक एक लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल हम बोलते हैं, और ये बुक का एक स्पेस ऑक्यूपाइड कर चुका है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है बुक नाम का, और वो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में स्ट्रिंग पूल के अंदर ऑक्यूपाइड हो गया। अब मैं इसको बुक को ना, अगर मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू बुक की जगह क्या बोलते हैं मैथ्स बुक हो जाए, कुछ और चेंज कर लूँ, तो मैं इसको कर नहीं सकता। स्ट्रिंग आप इम्यूटेबल होती है, आपको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, इफ द नेम वैल्यू हैज चेंज फ्रॉम बुक टू पेन, जैसे अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग नेम इक्वल टू बुक, तो नेम जो है किसको एड्रेस कर रहा है, बुक को। बुक एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंग पूल के अंदर है, राइट, एंड नेम इज लाइक इट्स रेफरेंस, इसका एक ऑब्जेक्ट है और जो इसको रेफरेंस कर रहा है। तो जहां भी हम नेम का यूज करेंगे वहां पे बुक आएगा, राइट। नाउ अगर मैं क्या करता हूँ, मैं नेम को ऐसे करता हूँ, नेम इक्वल टू पेन, तो बेसिकली अब नेम जो है एक ऑब्जेक्ट, एक रेफरेंस पॉइंट है, वो रेफरेंस किसको रेफर कर रहा है, वो कर रहा है पेन को। पेन इज अ ऑब्जेक्ट इन अ हीप मेमोरी, स्ट्रिंग पूल मेमोरी में पेन है। तो बुक भी एक ऑब्जेक्ट जो हमने पहले बनाया था, वो भी वहां पे अवेलेबल होगा। पेन है नया हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया पेन करके, वो भी स्ट्रिंग मेमोरी में होगा। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंग मेमोरी को, आप समझिए स्ट्रिंग मेमोरी है। सो वी हैव बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, बुक भी है पेन भी है, बट नाउ इट इज एडजस्टिंग टू पेन, नॉट अ बुक। तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये स्पेस ऑक्यूपाई होता जाता रहता है। तो ये स्ट्रिंग इस तरह वर्क करती है। जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। वो स्ट्रिंग पूल एक करके मेमोरी होती है हीप के अंदर, उसके अंदर ऑक्यूपाइड होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको स्ट्रिंग के बारे में जाननी, मतलब याद रखनी है, और वो लोग मतलब इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे। और स्ट्रिंग के बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है, स्ट्रिंग को हमने इम्यूटेबल क्यों बनाया है, वाई वी मेक स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल, हम उसको चेंज क्यों नहीं कर सकते। सो बेसिकली इसका आप नॉर्मल आंसर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम बहुत ज़्यादा हैश मैप में यूज करते हैं, हैश मैप की वैल्यू पेयर की तरह।
तो बेसिकली स्ट्रिंग हमने इसलिए बनाया ताकि कोई इसको चेंज ना करते, मतलब इसके बारे में आप डिटेल में हम कर सकते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो कर नहीं पाऊंगा, बेसिकली उसके लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट की एक स्लाइड इन पीपीटी चाहिए, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। मैं चैट में लिख देता हूँ, वाई वी मेक स्ट्रिंग एज इम्यूटेबल जावा। देखिए इंटरव्यू दोनों हो सकता है, अगर इंटरव्यूअर आपसे केवल बेसिक चीजें पूछना चाह रहा है तो वो इट्स अप टू हिम, ही विल आस्क ओनली बेसिक क्वेश्चंस एंड यू विल बी डन, राइट। लेकिन अगर कोई बहुत ही डीप पूछना चाहता है तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो यू मस्ट नो कि कैसे चीज चल रही है। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, ठीक है, आपने इतना याद कर लिया, दैट्स आल्सो फाइन। बट अगर इंटरव्यूअर चाहता है कि वो मैं आई वांट टू आस्क मोर डीप, सो पूछेगा इम्यूटेबल हमने क्यों बनाया, व्हाट इज द नीड टू मेक इट इम्यूटेबल। तो ये आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। ऐसी जैसे स्ट्रिंग होता है कि स्ट्रिंग बफर होता है, स्ट्रिंग बफर को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया स्ट्रिंग बफर नेम इक्वल टू बुक, राइट। सो आई कैन मेक नेम इक्वल टू पेन। तो अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सेम ही है। पहले नेम जो बुक था, नेम जो वेरिएबल था वो बुक को एड्रेस कर रहा था, अब नेम जो है पेन को कर रहा है, ये चेंज हो गया। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट बना रहेगा बुक का, राइट। तो कुछ भी चेंज करना है तो हम कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर में और स्ट्रिंग बिल्डर में। सो अगर हम बेसिक डिफरेंस बताएं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बफर में और स्ट्रिंग बिल्डर में, तीन चीजें होती हैं, स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर। तो इसमें यही होता है, जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो स्ट्रिंग बफर होता है या स्ट्रिंग बिल्डर होता है, हम दोनों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक अलग क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रिंग बफर में और स्ट्रिंग बिल्डर में जो डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रिंग बफर होता है वो सिंक्रोनाइज होता है और थ्रेड सेफ होता है, मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा स्ट्रिंग बफर होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता है, वो नॉन सिंक्रोनाइज होता है, तो हम उसको मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक दो डिफरेंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर हम मतलब इट कैन बी सो मेनी थिंग वी कैन डिस्कस लाइक व्हाट इज सिंक्रोनाइज्ड, राइट, व्हाट यू मीन बाय थ्रेड सेफ, या। तो बट अभी के लिए आप ये केवल इतना याद रख सकते हैं कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दो होते हैं जो कि म्यूटेबल होते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो जहां भी हमें स्ट्रिंग यूज करनी है, मतलब हमें कोई कीवर्ड यूज करना है स्ट्रिंग की तरह, बट हमें उसको चेंज भी करना है, तो हम स्ट्रिंग का यूज ना करके स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में कौन सा यूज करना है। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग इन मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट तो आप स्ट्रिंग बफर का यूज करें। इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग इन मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट तो आप स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर सिंक्रोनाइज नहीं होता है।